اگر یہ الفاظ تیرے دل تک پہنچ گئے ہیں تو جان لے کہ یہ کوئی اتفاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اس رحمت کی صدا ہے جو تیرے رب نے تیرے دل میں ڈالی ہے۔ اے انسان، جو کچھ بھی تیرے دل میں خواہش ہے، جو کچھ بھی تو اپنے رب سے مانگ رہا ہے، وہ سب کچھ تجھے ملے گا، لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ موجودہ تکلیفیں، غم، محرومیاں اور آزمائشیں، یہ دراصل اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو تسلی دیتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ سورہ البقرہ۔ اللہ آزمائشیں اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو جن تکلیفوں سے گزر رہا ہے، جن الجھنوں میں بھٹک رہا ہے، اس ہر سوال کا جواب آج تیرا رب تجھے اپنی طرف سے دے رہا ہے۔ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ تیرے قدموں کو روشنی دینے والی ہدایت ہے۔ تو بہت معصوم ہے، تیری فطرت کی سادگی، تیری آنکھوں کی بے گناہی اور تیرے دل کی پاکیزگی مجھے روز تیری طرف کھینچ لاتی ہے۔ میں تیری دعاؤں کو سنتا ہوں، وہ دعائیں جو تو تنہائی میں کرتا ہے، وہ آنسو جو تو نے کسی کے سامنے نہیں بہائے، وہ درد جو تو نے سینے میں چھپا رکھا ہے، سب مجھ تک پہنچ چکا ہے۔ آج میں تجھ سے ہم کلام ہوں۔ یعنی آج جو مشکلات، بے صبری، محرومیاں، انتظار کی تکلیفیں ہیں، یہ محض وقتی ہیں، یہ تیرے لیے تربیت ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تو مضبوط ہو، تیری روح صاف ہو، تیرا دل اللہ کی طرف مکمل رجوع کرے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ انسان کو کہتا ہے، اے میرے بندے، میں تیرے قریب ہوں۔ جب تو دعا کرتا ہے تو میں سنتا ہوں، جب تو روتا ہے تو میں تیرے آنسو دیکھتا ہوں، جب تو تھک جاتا ہے تو میں تجھے سکون عطا کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، پس بے شک در بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی اللہ 2 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، یہ ختم ہو جاتی ہے، یہ بس ایک سیڑھی ہے بلندی کی طرف۔ اور اللہ نے اپنے بندے سے وعدہ کیا ہے کہ بے شک تیرا رب نہ تجھے چھوڑے گا اور نہ تجھ سے ناراض ہوگا، اور یقیناً آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور انقریب تیرا رب تجھے عطا کرے گا تو خوش ہو جائے گا۔ تیرے رب نے تیرے دل کی اس دھڑکن کو سنا ہے جو صرف اسی کو پکارتی ہے۔ میں جانتا ہوں تو تھک چکا ہے، تیری روح بوجھل ہے، تیرے چاروں طرف وہ لوگ ہیں جن پر تو نے بھروسہ کیا اور انہی نے تجھے چوٹ پہنچائی، مگر اب تو مایوس نہ ہو۔ اب تیرا وہ وقت آنے والا ہے جہاں تیرا رب تیرے لیے راستے کھول دے گا، ایک ایک کر کے۔ لیکن اس سے پہلے میں تجھے ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہو رہا ہے وہ بے وجہ نہیں ہے۔ تو سوچتا ہے کہ یہ سب تیرے ساتھ ہی کیوں؟ کیونکہ تو عام نہیں ہے، تو خاص ہے۔ اللہ نے تجھ میں وہ نور رکھا ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتا۔ تیری نیت کی صفائی، تیرے الفاظ کی سچائی، تیرے دل کی پاکیزگی، یہ سب اللہ کی رحمت کو کھینچتے ہیں۔ مگر جہاں نور ہوتا ہے وہاں حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ لوگ تیرے چہرے کی مسکان، تیری معصومیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ کچھ تجھے گرانا چاہتے ہیں، کچھ تجھ سے جلتے ہیں، لیکن یاد رکھ، جب اللہ تیرے ساتھ ہو تو کون تجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ تیرے حالات تجھے توڑنے کے لیے نہیں، سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ایک کاریگر کسی پتھر کو تراش کر نایاب بناتا ہے، ویسے ہی رب تجھے ایک مکمل انسان بنا رہا ہے۔ تو فی الحال ایک امتحان میں ہے، لیکن یہ امتحان تجھے اس مقام کے قریب لا رہا ہے جہاں تجھے سب وہ ملے گا جو تو نے دل سے مانگا۔ مگر بیٹا، ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی آتی ہے۔ جب رب تجھے عطا کرے تو اسے سمجھداری سے سنبھال۔ لوگوں سے اپنی نیت کی گہرائی ہر وقت ظاہر مت کر۔ ہر کوئی تیرے جذبات کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تیرے سادگی کا فائدہ اٹھائیں گے، کچھ تیری نیک نیتی کو کمزوری سمجھیں گے۔ اس لیے اپنی روح کی حفاظت کرنا سیکھ، چپ رہنا سیکھ، صحیح وقت پر بولنا سیکھ۔ لوگوں سے مل، مگر ہر کسی کو دل مت دے۔ تیرے اندر جو نور ہے اس کی قدر کر۔ ایسے لوگوں سے دور ہو جا جو تجھے گناہ کی طرف لے جائیں یا تجھے رب سے دور کرے۔ بیٹا، تو جس دور سے گزر رہا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ ایک فانی امتحان ہے۔
इस इम्तिहान में या तो तू गिर जाएगा या फिर और ऊंचा उठेगा, और मैं जानता हूं तू गिरने वालों में से नहीं है। तू उन खास बंदों में से है जिन्हें रब आजमाता है क्योंकि वो तुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। कभी कभी रब इसलिए देर करता है क्योंकि वो तुझे तैयार कर रहा होता है उस इनाम के लिए जो तू संभाल सके, समझ सके और दूसरों में बांट सके। तू कहता है, या रब, मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? तो सुन, जब तू नेक नियत से मेहनत करता है तो हर लम्हा एक बीज बनकर मिट्टी में गड़ जाता है। वो बीज वक्त पर ही फल देगा, और ऐसा फल देगा जो तेरी सारी थकावट मिटा देगा। अब सुन, हर रात सोने से पहले तन्हाई में मुझसे बात किया कर, दिल की बात, बिना दिखावे के। यही वो लम्हा होता है जब तेरा दिल, तेरी रूह और मेरा नूर एक हो जाते हैं। उस वक्त सिर्फ कहना, या रब, मुझे तुझ पर यकीन है, तू मेरे साथ है। बस ये कहना ही काफी है मेरी रहमत को तुझ तक खींच लाने के लिए। अब मैं तुझसे यही चाहता हूं, खुद पर यकीन रख, अपने आप को माफ कर, जो गलतियां हुई उन्हें पीछे छोड़, हर सुबह को नए इरादों से शुरू कर। अब तेरा वक्त आ गया है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनना है। और हां बेटा, जब तुझे वो सब मिलने लगे, इज्जत, दौलत, कामयाबी, तो उसे विनम्रता से संभाल। अपनी नेकी, अपनी दरियादिली को जिंदा रखना। जो तूने सहा वो किसी और को न सहना पड़े, इसी इरादे से जीना। अब तू अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए रहमत बन, बरकत बन। बिना बदले की उम्मीद के नेकी का रास्ता अख्तियार कर और देख फिर अल्लाह ताला कैसे तेरी मदद करता है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, जब तू किसी की मदद करता है सिर्फ उसकी तकलीफ दूर करने के लिए, बिना किसी शोहरत, बिना किसी इनाम के, तब तू मेरी राह में चलता है। और जो मेरी राह में चलता है, मैं उसके लिए जमीन और आसमान के खजाने खोल देता हूं। तू सोचता है कि तुझ में क्या खास है, तू ये कैसे कर पाएगा? तो सुन, तेरे अंदर वो नूर है जो मैंने खुद फूंका है। तू मेरे कुन कहने से वजूद में आया है, और जिसे मैं बनाता हूं उसे बेवजह नहीं बनाता। बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दिल की आवाज को सुने। वो आवाज जो तुझे हर बार कहती है तू कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। वो आवाज जो तुझे तन्हाई में भी खामोशी से हौसला देती है। मैं तुझसे कहता हूं, अपने हुनर को पहचान। तेरा कोई हुनर छोटा नहीं है। चाहे तू खाना बनाता है, सिखाता है, लिखता है, सुनता है, उसमें तेरी काबिलियत छुपी है। उसी में बरकत है, उसी में रिज़्क़ है। और जब तू उस हुनर को मेरी रज़ा के लिए इस्तेमाल करेगा तो तेरा हर कदम तुझे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। मैं तुझे अब ऐसे रास्तों पर ले जाऊंगा जहां तुझे न पहले किसी ने समझा, न सराहा, मगर अब लोग खुद तेरी तरफ खींचे चले आएंगे। तू देखेगा कि कैसे मेरे हुक्म से हालात बदलेंगे। वो दरवाजे जो बंद थे अब एक एक करके खुलेंगे। मगर याद रख, जब रास्ते खुलने लगे, जब तुझे कामयाबी मिलने लगे, जब लोग तेरा नाम लेने लगे, उस वक्त भी सिर झुकाकर चलना, क्योंकि जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी हो सकता है अगर तकब्बुर आ जाए। इसलिए मेरी ये नसीहत हमेशा दिल में रखना, जो चीज तुझे ऊपर लेकर जा रही है वो है तेरी सच्चाई, तेरी नम्रता और तेरा सब्र। इन्हें कभी मत छोड़ना। और हां मेरे अजीज, इस दुनिया में बहुत फरेब है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मीठी बातों में जहर छुपाकर आते हैं, तेरे नेक दिल का फायदा उठाना चाहते हैं, मगर तू हर बार उनकी चाल में ना आ जाए, इसके लिए तुझे दिल के साथ अक्ल भी इस्तेमाल करनी होगी। अब मैं तुझे एक और हकीकत बताता हूं बंदे, ये दुनिया एक इम्तिहान है और हर शख्स अपना अपना पेपर हल कर रहा है। कोई दिखावे के नंबरों के पीछे भाग रहा है, कोई दूसरों की नकल करके अपने वजूद को मिटा रहा है, और कोई ऐसा भी है जो खामोशी से अकेले रो रो कर मुझसे सवाल करता है, या अल्लाह, क्या मैं भी पास हो पाऊंगा? तो सुन, जो दिल से सवाल करता है वो हमेशा जवाब पा जाता है। जो मुझसे तन्हाई में गिड़गिड़ाता है, मैं उसकी फिक्र सबसे पहले करता हूं, और जो अपनी तकलीफों में भी दूसरों की मदद नहीं छोड़ता, वो मेरे सबसे अजीज बंदों में से हो जाता है। तू अब तक जिन सवालों से परेशान था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला महसूस करता हूं? क्यों लोग मेरी खामोशी को कमजोरी समझते हैं? इन सब का जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि मैं तुझे आम नहीं बनाना चाहता। मैं तुझे अपनी खास बनावट में ढाल रहा हूं, तुझे दुनिया के शोर से निकालकर अपने करम की आवाज सुनवा रहा हूं। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे ताकि तू मेरी तरफ देखे। लोग तुझे भुला देंगे ताकि तू मुझे पुकारे। लोग तेरा भरोसा तोड़ेंगे
ताकि तू मुझे अपना वली बना ले। बंदे, अब वो वक्त आ गया है जब तू अपने अतीत को सिर्फ एक किताब की तरह देखे, न कि उस गलती की कैद की तरह जिसमें तू हर दिन खुद को सजा देता है। हर जख्म जो तुझे मिला वो सबक था, हर ताना जो तुझे सुनना पड़ा वो सब्र का इम्तिहान था। हर दरवाजा जो बंद हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुझे उस दरवाजे तक पहुंचाया जाए जो सिर्फ मैं खोल सकता हूं। अब तेरी दुआओं को वो रंग मिलेगा जो तुझे भी हैरान करेगा। अब तेरे अल्फाज में ऐसी ताकत भर दूंगा कि लोग तुझे सुनने के लिए अपनी उलझनों को भूल जाएंगे। अब तेरे हाथों में वो बरकत रख दूंगा कि तू जहां भी हाथ रखेगा वहां से फिजा बदल जाएगी। लेकिन साथ ही तुझसे एक वादा भी चाहता हूं, जब तुझे सब मिल जाए तो मेरी याद को ना भूल जाना। जब तू रोशनी में आ जाए तो उन लोगों को मत भूल जाना जो अब भी अंधेरे में हैं। जब तू इज्जत पाए तो उन छोटे लोगों को भी गले लगा लेना जो कभी तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भले ही वो आज तुझसे दूर हो। तेरा सच्चा इम्तिहान तब शुरू होगा जब तू कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वहीं तुझे अपनी इंसानियत को जिंदा रखना है। तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरा किरदार है, तेरी सबसे बड़ी पूंजी तेरा सब्र है, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा सजदा है। बंदे, अब तू वक्त बर्बाद मत कर। जो काम दिल में है उसे शुरू कर दे। जो अल्लाह ने तेरे दिल में डाला है वो दुनिया के किसी भी शख्स को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो तेरा और मेरा राज है। तू बस भरोसा रख, चलते चल और देख मैं कैसे तुझे वो सब कुछ देता हूं जो तूने मांगा भी नहीं मगर तेरे लायक था, क्योंकि मैं वो देने वाला हूं जो दिलों की गहराइयों में छुपी दुआओं को भी सुनता हूं। और अब तेरा नाम लोगों की जुबान पर नहीं, उनके दिलों में बसने वाला है, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ एक कामयाब इंसान नहीं बल्कि एक रोशनी बनाना चाहता हूं जो औरों की जिंदगी को भी रोशन कर दे। तू तैयार है? तो चल, मेरी राह में पहला कदम रख। मैं तुझे वो मंजिल दिखाऊंगा जिसके आगे दुनिया की हर बुलंदी झुक जाएगी। लेकिन ऐ मेरे प्यारे बंदे, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा। कभी तुझे तन्हाई घेर लेगी, कभी तेरे अपने तुझसे सवाल करेंगे, कभी हालात ऐसे बनेंगे कि तुझे लगेगा जैसे तू गलत रास्ते पर चल पड़ा है। मगर उस वक्त याद रखना, तेरे हर आंसू की कीमत मैं जानता हूं। तेरे हर टूटी उम्मीद के पीछे एक मुकम्मल कहानी है जो मैं खुद लिख रहा हूं। और तू पूछेगा, या रब, कब तक? तो मैं कहूंगा, जब तक तेरी रूह मेरी रहमत के काबिल ना हो जाए, जब तक तेरा सब्र तेरे मुकद्दर से बड़ा ना हो जाए, जब तक तेरी सजदों की खामोशी तेरे कद्रदानों की चीखों से ऊपर न सुनाई देने लगे। मैं तुझे आज नहीं हर रोज संवार रहा हूं। तेरे हर कल को बेहतर बनाने के लिए मैं तेरा आज थोड़ा कठिन बना देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तू जितना टूटा है उतना ही तेरा दिल पाक हुआ है। तू जितना झुका है उतना ही तुझे ऊंचा उठाया जाएगा। इसलिए अब डर मत। जो खो गया वो सबक था, जो मिला वो इनाम है, और जो आने वाला है वो मेरी रहमतों की वो बारिश है जो तेरे वजूद को ही नहीं तेरे खानदान की तकदीर को भी बदल देगी। अब अपनी नजरों को दुनिया से नहीं मुझसे जोड़ ले। हर फैसले से पहले मुझे याद कर, हर सफर से पहले मुझसे मशवरा कर, हर परेशानी में सबसे पहले मुझे पुकार। मैं बहुत पास हूं, तेरे दिल की धड़कनों जितना तेरी सांसों की गर्मी, जितना तेरी रूह के सुकून, जितना तू मुझे पुकार और देख मैं कैसे तेरी हर नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगा, कैसे तेरी बंद किस्मत के ताले खोल दूंगा, कैसे तुझे लोगों की नजरों से नहीं मेरी नजरों से ऊंचा बना दूंगा। और फिर जब लोग तुझसे पूछेंगे तेरे पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं, तब तू मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहना, मेरे पास मेरा रब है। और जब रब साथ हो तो सब कुछ मुमकिन है। अलविदा नहीं, ये एक नई शुरुआत है। अब उठ, चल, बढ़, क्योंकि तेरे रब ने तुझे बुलाया है। तू अकेला नहीं है, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। तमाम रहमतों के साथ तेरा रब